Hello and welcome to Dr. Speak, our daily program during the COVID-19 pandemic that gives you a platform to speak directly to a panel of esteemed doctors on all the health-related issues regarding COVID-19 and the health-related complications due to the lockdown. You can ask your medical queries related to COVID-19 and the medical experts on the show will answer them. Our phone lines are now open for an hour from 2 to 3 and you can call on these numbers, that's 011-233-87031 and 011-2309-7655. You can also post your queries on DD News's live Facebook page and in reply to the pinned tweet on our Twitter handle, that's at DD News Live. I am Nancy Kohli and with me is my colleague Rajni. शुक्रिया नैन्सी। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी है। वे सभी नर्सेज, वे सभी स्वास्थ्यकर्मी जो कोविड संक्रमण के दौरान देश की सेवा कर रही हैं, मरीजों की देखभाल कर रही हैं, उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आज के दिन। और कोविड संक्रमण जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, बहुत ज़रूरी है कि उससे जुड़ी हर जानकारी हम तक सही ढंग से पहुँचे। क्या सही है, क्या गलत और किन किन रास्तों को अपनाकर इस संक्रमण से हम दूर रह सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आप भी कोविड संक्रमण को लेकर जो भी सवाल पूछना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से पूछिए, हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स इस तरह हैं 011-233-87031 और 011-230-97655। तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे, हमारे विशेषज्ञों से अपने सवालों का समाधान जान सकते हैं। और सबसे पहले आज के विशेषज्ञों से आपका परिचय करा दें। स्टूडियो में हमारे साथ जीबी पंत हॉस्पिटल से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर SM रहेजा हमारे साथ हैं और इसके अलावा दो विशेषज्ञ और हमारे साथ जुड़ेंगे। स्काइप पर हमारे साथ डॉक्टर अशोक चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे जो ILBS हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा जूम पर हमारे साथ होंगे डॉक्टर नीरज गुप्ता। आप सफदरजंग हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। Yes, absolutely. And in fact, let's begin with Dr. Raheja with you this afternoon. Dr. Raheja, of course, we are nearing the end of lockdown 3.0 and Prime Minister Modi has emphasized on community participation, on community empowerment. Are we looking at that? That's the only solution forward, that, lockdowns cannot be enforced, one lockdown after the other. Of course, that's a call for the government to take, but a lot of responsibility is of the citizen of this country to maintain social distancing, to follow proper hygiene, and that's clearly the way forward. What would you say, Dr. Raheja? See that every adversity brings new opportunity. So please don't panic, but it definitely needs urgency. We should not lose sight and we should look at the facts that this virus is going to stay and we need a very, very urgent community participation, community cooperation and empowerment. Basically, this virus transmits between human to human. So now it all depends on us, how we are going to act. And it's a teamwork. Every citizen, every individual, young, old or a child has to act responsibly. And what I feel is awareness is the first step towards community participation, understanding the problem. And I am really grateful to your channel that you have been doing it round the clock for many months and I have been a part of your programs many times. Right. So now it all depends on the people, how they take it. And I firmly believe that everyone knows the responsibility. The point comes knowledge, education and practice. Now I think most of us know what is COVID-19. It's a virus which is transmitted from human to human through the droplet infection, through contact, through the fomites. Like if you are touching something and then it can enter your body through the mucosal lining of your nose, mouth, eyes. तो डॉक्टर रहेजा, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि लॉकडाउन 4 में या
चौथे चरण में अगर हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अब थोड़ी सी ढील दी जा रही है। उसमें खासकर एक बात अहम हो जाती है, जैसे रेलगाड़ियों का जो आवाजाही है वो शुरू हो गई है। आपके पास आऊँगी डॉक्टर रहेजा, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर नीरज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीरज गुप्ता, आपसे सवाल है, जब अब यातायात के जो साधन हैं वो खोले जा रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर हम रेलगाड़ियों की बात करें, किस तरीके की अतिरिक्त सावधानियां आप चाहेंगे, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बरतें इस वक्त पर, खासकर अगर रेलों की या ट्रेन की बात करें तो? धन्यवाद। आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। बेसिकली हमको ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिवेंशन उसकी कोशिश करनी होगी, ताकि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे संचार को ना फैले, जिसके लिए सबसे पहले प्रयास तो ये रहना चाहिए, जो कि तो पहले से मालूम है, कि एक डिस्टेंस मेंटेन करना आवश्यक होगा। कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। हमेशा मास्क लगा के रखना होगा, और जितना संभव हो मास्क को छुए ना, अगर छूते हैं तो उसको आप हाथ धोना आवश्यक होगा, चाहे हैंड सैनिटाइजेशन किए, लेकिन ज़रूरी है कि आप सोप एंड वाटर 20 सेकंड उसको धोने की प्रयास आपको करना होगा। लेकिन जिस प्रकार से यातायात खुलने जा रहा है, ट्रेन और बस की सुविधा खुलने जा रही है, इसमें ये किस प्रकार से सरकार जो है वो मरीजों का या व्यक्तियों का आपस में डिस्टेंस गैप मेंटेन कर पाएगी। हो सकता है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि व्यक्ति चढ़ते समय, गाड़ी में बैठते समय, और इन चीज़ों का ध्यान रहे कि वे दूसरे से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करें। जब टॉयलेट जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हाथ धोना उनका लिए कंपल्सरी होना चाहिए। कॉफ हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें कि वो जो खांसे तो किस प्रकार से, और अपने कपड़े जो हैं वो दूसरे के जगह Okay, खांसने के all right. कपड़े या कपड़े हैं Sure. इस तरह के शेयर ना हो। Okay, all right, Dr. Gupta, we'll come back to you in just a bit. Let's in fact also get in a Okay. word from Dr. Ashok Chaudhary. He's from the ILBS. Thank you, Dr. Chaudhary, for joining us here on Doordarshan News on our show COVID-19 Doctor Speak. Doctor, your comments here, you know, because as far as non-COVID ailments are concerned, because there are many patients across the country who would be receiving treatment, who would be in the need of, you know, going to the hospital and seeking urgent medical advice. What would your advice be to such patients, you know, because they perhaps cannot avoid and linger on, you know, going to the hospital for a very long time. So what precautions would you advise these patients to follow? Yeah, you rightly said, because this disease is not going to be clear in a period of days or months. So those having chronic disease, they has to go to the hospital, and that too, and in that case, precautions what we can see is two parts. One is for the regular follow-up parts, another is for the any procedures. So when you visit a hospital, try to avoid the overcrowding. Social distancing should be always through and through. The basic hand sanitization methods that should be ensured at any cost. And third is the contact. So in that case, the WHO has clearly defined what is contact. Contact is when you have a contact with a person in 2 meter distance, 6 feet distance, without a mask, and that is for more than 15 minutes. Okay. So we should know that we should not have a longer duration of contact, and always we need a mask to be wear. The mask what I am wearing here is not needed always. Simply a cotton mask also, which we can prepare in the home also. Okay. And that can be used daily, because a lot of people cannot afford also, and it is not for the 1 week, 2 weeks, for months together. So we need to make a cotton also, and we can use properly them. We can sanitize them. We clean and have a sun bath to them. So the mask is definitely needed. Okay. So in that way, we can have, you know, the contamination prone procedures. And then next important is the procedures. Procedures will be at the discretion of the treating physicians or the surgeons. Okay, all right. In fact, you started getting our callers at this point. Rajni, let's go across to our callers. प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद से। जी प्रकाश, अपना सवाल पूछिए, और सवाल पूछते वक्त अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिएगा या उसे बंद कर दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर से है, और पहली चीज नाम सॉरी आपने प्रयागराज बोलिए, मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, इलाहाबाद मेरा पुराना नाम है, और प्रणाम सभी को करता हूँ, डॉक्टर साहब लोगों को, और आप लोगों की सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब भी लॉकडाउन खुलेगा
तो क्या प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, और इन लोगों को किस तरीके से बचाया जा सकता है? क्योंकि टेम्पो में आते हैं स्कूल की गाड़ियों से, जो मॉब रहती है, एक दो गाड़ियों में बच्चे काफी रहते हैं, उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है? इसके लिए कैसे? हाँ, इस समय आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। लॉकडाउन अब फेस्ड मैनर में जब हटाया जाएगा तो इस समय चैलेंज ज़्यादा बड़ा है जी। इस समय हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय लोगों की आपस में इंटरेक्शन होगा, और जैसा कि हमने बताया कि ये ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन है, तो इस समय जो ट्रांसमिशन ऑफ वायरस है वो थोड़ा बढ़ सकता है। तो इसके लिए हम सबसे ज़रूरी है कि हम हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। हैंड हाइजीन, पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। हैंड हाइजीन का सिंपल पॉइंट है, आप एक हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सोप एंड वाटर यूज़ करते हैं तो बेस्ट है। यदि कहीं पे साबुन या पानी नहीं है तभी आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और इसका भी एक तरीका है कि आपने इसको 3-4 ml लेना है, पाम के ऊपर गोल गोल घुमाना है, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन या हैंड सैनिटाइज़र आपके उंगलियों में, हाथ में लगा रहना चाहिए। ये हमारे जो नाखून हैं और ये टिप्स ऑफ फिंगर हैं, इसमें ज़्यादातर जर्म्स रहते हैं, नॉट ओनली वायरस बट बैक्टीरिया आल्सो। तो इसको आप जरूर रब करें और उसके बाद अच्छे से हाथ को रगड़ते हुए कम से कम 20 सेकेंड्स तक साबुन या हैंड सैनिटाइज़र, वो अल्कोहल बेस्ड जिसमें 60% से अधिक अल्कोहल है, कांटेक्ट में रहना चाहिए। और उसके बाद आप एक साफ पानी से हाथ को धो लीजिए और नल को या तो अपनी कोहनी से बंद कीजिए या फिर किसी टिश्यू पेपर से। दूसरा, कफ एटिकेट्स सबसे ज़रूरी है कि इस समय हमें इधर उधर नहीं थूकना, और यदि घर से बाहर जाते हैं तो अपने मुंह को, नाक को ढक के रखना है। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि एक 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क है, ये एक अच्छा प्रोटेक्शन है। इससे आप अपने आप को बचाएंगे और जो दूसरे व्यक्ति है जो जिसके आप संपर्क में आएंगे उसको भी बचाएंगे। और दूसरी बात है कि 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी, इतना फासला बना के रखें। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप होममेड कॉटन का मास्क यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप गमछा टाइप या कोई भी सॉफ्ट कपड़ा बांध सकते हैं, या लेडीज स्कार्फ बांध सकती हैं। जेंट्स अगर उनके पास कुछ नहीं है तो रुमाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि N95 मास्क जो है ये सिर्फ एक हेल्थ केयर वर्कर के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये इसको रूटीन में एक सिटीजन को डालना ज़रूरी नहीं है, ये उन्हीं के लिए ज़रूरी है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड COVID-19 के पेशेंट का देख रेख कर रहे हैं। And Dr. Raheja, you know, I saw you a short while back. You were continuously sipping hot water. What Yes. Advice would you like to give to our viewers this afternoon? Yes, this is another way. This I am carrying with me also because I go to the hospital, and you understand we have to take extra precautions. So this virus becomes inactive if it is exposed to temperature of more than 56 degree. So if you are doing, and this virus stays in your nose, throat, nasopharynx and lungs, that is why it tends to spread very fast. That is another reason. And when you are doing gargle with hot saline water, that is water with some salt or sodium bicarbonate और मीठा सोडा जिसको कहते हैं, उससे हम इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। स्टीम लेने से इनएक्टिवेट हो जाता है वायरस। और इसके अलावा यदि आप गर्म पानी पीते रहें, जितना कि चाय की जितना गर्म पानी है, दैट विल हेल्प। Okay, all right. तो So very important. ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं। Absolutely. और सबसे ज़रूरी है कि हम इसके अलावा अच्छा खाना खाएं, क्योंकि एक तो हो गया कि आप वायरस के ट्रांसमिशन को रोक रहे हैं, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि हम अपने घर में जो बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि 60 साल से अधिक का या जो हाई 65 रिस्क साल ग्रुप से, है डॉक्टर, जो हाई रिस्क ग्रुप है रहेगा जिनके उसका, अंदर कोमॉर्बिड उसे कंडीशन हम है, बिल्कुल उस पर विस्तार से चर्चा हाँ जी। करना चाहेंगे आपसे। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर जो आपने गर्म पानी से ही जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, लोग बार बार ठंडे पानी की तरफ बढ़ते हैं और बार बार उनका गला सूखता है। तो क्या डॉक्टर नीरज गुप्ता से मेरा ये सवाल है कि अब एसी भी चलने लगे हैं घरों में, लोगों को गर्मी लग रही है, तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है, आपकी इस वक्त क्या राय है? बढ़ते तापमान के बीच लोग किस तरीके से अपना ध्यान रखें?
अभी जैसे बताया गया कि गर्म पानी का सेवन, और गर्म पानी का सेवन आवश्यक है क्योंकि इससे गले की जो लाइनिंग का टेम्परेचर बढ़ने से वायरस की पेनिट्रेशन कम हो जाती है और इनएक्टिवेट हो जाता है, और इसकी वजह से वो शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आवश्यक है। इसमें ये भी जैसे फ्लू के टाइम पे हमने स्टडी किया था तो देखा था कि जब भी 1 डिग्री टेम्परेचर अगर म्यूकस लाइनिंग का या गले की लाइनिंग का टेम्परेचर कम होता है तो 3% एंट्री का रिस्क बढ़ जाता है। तो इससे कहने का मतलब यह है कि जितना आप ठंडा पानी, बर्फ या आइसक्रीम इस तरह की चीज़ें लेंगे तो हमारे चांसेस ये हैं कि ये वायरस की पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना अवॉइड कर सकते हैं Sure. करिए। जहाँ तक एयर कंडीशनर का संबंध है, एसी चालू होने का कोई नुकसान तो नहीं है, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें। Okay. एक उसमें ध्यान ये रखना है कि इसका टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच में रखा जाए। दूसरा इसमें कि जो खिड़की अपना थोड़ा-सा खुला रखें ताकि इसमें फ्रेश एयर आए, तो डाइल्यूशन होता है, और जो अंदर का जो प्रेशर होता है उसकी हवा का सर्कुलेशन बाहर की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो वायरस फैलने का खतरा कम हो जाता है। Sure. और Okay. ह्यूमिडिटी को जो है 40 से 70% के बीच में मेंटेन कीजिए, तो चांसेस ये हैं कि वायरस ज़्यादा फैलेगा नहीं। जितना जितना कम टेम्परेचर करेंगे, उतना वायरस सरफेसेस पे टिकता है, ज़्यादा देर तक सक्रिय रहता है और उसका स्प्रेड होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। जहाँ तक मास्क का संबंध था, मास्क जो है वो जैसा गमछा या कपड़ा या कोई भी मास्क रखने की जो बात की जाती है, उसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि व्यक्ति अपना हाथ जो है वो अपने नाक, आँख या गले तक नहीं पहुँचा पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी अपना फेस छूना हो, अक्सर आदमी एक दिन में लगभग 90 बार अपना फेस छूता है। तो अगर आप अपना फेस छूते हैं, तो अगर आप सैनिटाइज़र या सैनिटाइज़र भी बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है और किसी-किसी को स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप साबुन पानी से ही अपना हाथ हमेशा धोते रहें, और कम से कम फेस छूने को जितना अवॉइड कर सकें, उतना ही आपका रिस्क कम हो जाए। Okay. Dr. Gupta, also since you are an expert in the pulmonology department, and of course Yeah. you deal with the issues of lungs and respiratory, and Correct. you're also actively dealing with the COVID-19 patients. One of the things Yeah. that I would like to ask you is what precautions specifically patients with respiratory disorders and with conditions like asthma should follow. And as far as COVID cases are concerned, one of the silver linings that we're getting to see is that the recovery rate has increased over the past few weeks. So that's clearly a bright spot that we're looking at in these difficult times. Yeah, actually, let me first make it clear to you. We have close to about 235 odd patients we have been treated. We have discharged more than 116 odd patients also. So we have a good amount of experience now regarding the number of patients that are coming to us and the experience we are gaining. So far as the persons with the existing lung conditions are concerned, persons with the chronic lung diseases are definitely prone for deterioration, especially those people who have a borderline oxygen carrying capacity. These are the ones who are likely to land up into the severe state of hypoxia or lack of oxygen in the blood. And so far as like COPD, smokers' lung are concerned, they or people with the cancers or with the underlying lung conditions concerned, they definitely would be requiring more precautions. So they just need to stay away so far as possible. They should take all sorts of precautions, including mask, sanitization, and staying away from public or even their own home members. At least have some distance between them. So far as asthma is concerned, asthmatic people are actually taking steroid inhalers or sometimes are requiring oral steroid also. And it is noticed that the steroids can actually decrease your resistance level, which may make you more prone for the severe or moderate degree of injury with the corona infection. So in the situation, what they are suggesting is, number one, you should not stop your inhalers. They are safe. They protect your lining also, and keep the lining in such a condition that the penetration will not be easy for the bacteria. So they must maintain their inhalers and medication. Normally, people who are nebulizing are recommended not to nebulize because with the nebulization, the aerosol production is higher. And so if anybody having an infection and who nebulizes जी can actually cause a risk जी to the नीरज जी people बहुत around him.
जी डॉक्टर नीरज, बहुत बताएं। महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त। जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं उसको देखते हुए आप तक वापस आएंगे, लेकिन जी। इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। नागेंद्र सवाल पूछना चाह रहे हैं। नागेंद्र, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर, मेरा सवाल यह है कि हिमाचल में मई महीने में फरवरी और जनवरी की सर्दी पड़ रही है। अब आजकल फिर मौसम खराब है और 17 तक मौसम विभाग ने यही कहा है। तो हमारे यहाँ तो फ्लू और फ्लूएंजा और जुकाम बुखार जो है अक्सर होता रहता है, लेकिन इस बार तो ये टेम्परेचर जो कोरोना को जो सूट करता है मतलब 25 से ऊपर नहीं चढ़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि जून जुलाई में ये पीक पे होगा, तो हमारा क्या होगा सर? हमें क्या इसके लिए प्रिकॉशन करना पड़ रही है? ऊपर से जो भारी तादाद है हिमाचली जो बाहर रहते हैं, जो सिम्टोमेटिक हैं और मजलूम मजदूर जो रेड जोन शहरों में रह करके जो ग्रीन गांव में प्रस्थान कर रहे हैं, तो हमें इन सब तमाम बातों से कैसे बचा जाए, कैसे बुजुर्गों को और बच्चों को बचाया जाए? धन्यवाद। नमस्कार। तो दो सवाल जुड़े हुए हैं नागेंद्र जी के। तापमान से संबंधित है, हिमाचल में जिस तरीके से मौसम बदल रहा है। डॉक्टर अशोक, इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कई जगहों पर बारिश हो रही है, तापमान बदल रहा है, वहां पर लोग अपना ध्यान कैसे रखें? नागेंद्र जी, पहले बोलूंगा, आप सही क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन अभी तक जितना स्टडीज हुआ है वो टेम्परेचर की कोई ज्यादा प्रभाव नहीं आया है। तो गर्मी में थोड़ा सा बेटर होते हैं, बट ऐसे कोई लार्ज स्टडी नहीं बताया कि टेम्परेचर कम होने से ज्यादा होगा। दूसरा, बारिश के साथ इसका ज्यादा नहीं है, वो बता रहे थे कि पोस्ट मॉनसून मतलब बारिश के बाद एक फ्लेयर हो सकता है। बट अभी जैसे आपने पूछा कि करना क्या है, कि वो सब आपकी इमेजिनेशन है, डर है, वो सब मत सोचिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने 3 बताई, हैंड हाइजीन और सबको एड्रेस कर रहे हैं, तो ये चीज कोई ज्यादा इशू नहीं बनाएगा। तो आप जो भी आपके आने वाले तो है उनको कोई डर नहीं है। टेम्परेचर के लिए आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए डरना कोई जरूरी नहीं है। और जो टेम्परेचर के डिफरेंस है वो कोई 1-2 स्टडीज में आया है, इससे इट इज नॉट रिकमेंडेड। डब्ल्यूएचओ ने भी इसको मना किया है कि टेम्परेचर कम होने से बढ़ जाएगा या टेम्परेचर ज्यादा होने से घट जाएगा, ये ऐसे कुछ नहीं है। और अभी मई में हमारे इंडिया में टेम्परेचर 40 भी चल रही है, 35 चल रहा है, स्टिल हमारे पास कोरोना की केस चल रही है। तो ये एक एपिडेमिक है, ये एक बेल सर कर्व होती है कि स्टार्ट होगा, बढ़ेगा, फिर कम होगा। वो हम उसी फेज में जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होनी। तो हमारे इसी पीरियड में वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, दैट इज द ट्रीटमेंट फॉर यू। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर हेजा, इफ आई कैन दूसरा क्वेश्चन था, आई थिंक बताएंगे आप। जी, वो मजदूरों के बारे में पूछ रहे थे। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट खोला गया है, लोग आ जा रहे हैं, उसके बारे में क्या सावधानी रखी जाए? देखिए, ये तो आपको पहले जानना होगा कि ये जो लॉकडाउन है था कि इमीडिएट फेज में हमको प्रिपरेशन होने के लिए कि हमको ये पीरियड को कैसे, क्राइसिस को कवर करने के लिए, और हमने अभी उसके लिए सारे तमाम रेडी हो गए कि ये हुआ। हम लोग के मन में सबसे एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज आ गया कि हमको कैसे अपने को प्रोटेक्शन और दूसरे को स्प्रेड नहीं होने के लिए देना, वो हम सीख लिए। दूसरी जो चीज होना था कि हमारे टेस्टिंग फैसिलिटीज होनी थी, वो भी बढ़ गए। आप अभी देखेंगे इंडिया अभी 1 मिलियन में 1200 के ऊपर हमारा टेस्टिंग हो रहा है। तो ये टेस्टिंग होने से अभी ज्यादा केस आ रहे हैं। पहले हमको डर लगता था कि जो लोग ज्यादा बीमार इसी के लिए हो रहे कि कोरोना सबके मन में था, हुआ तो मृत्यु सुनिश्चित है, वो एक मीथ था जो हमारा डर है। और इंडिया में जो कॉम्प्लिकेशन और मोर्टेलिटी इट्स ओनली 2 to 3%, मैक्सिमम अप टू 6%। तो 100 लोगों को कोरोना होती है तो 6 लोगों से बहुत मैक्सिमम हो सकती है, वो भी जो कॉम्प्लिकेशन रिस्क होता है। तो इसी के लिए वो डर नहीं है। माइग्रेंट लेबर को आना है तो आपको उनके साथ जो हमने बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड हाइजीन रखना है, और आपकी कांटेक्ट टाइम जो हमने बताया था पहले भी 15 मिनट से कम होनी चाहिए, और आपके मूवमेंट को मिनिमम करना, वो हम प्रिवेंशन लेने से हम रोक सकते। तो उसी के लिए उनको आना ही होगा और आपके पास ही रह सकते। बट हमको कोई सिम्टम्स वाला जो होता है कि हमको रिपोर्ट करना होता है। और गवर्नमेंट ने भी अभी कर दिया कि टेस्टिंग बहुत लिबरल हो गया, आप जब चाहें टेस्ट करा सकते। ओके, श्योर। तो उससे इस चीज को हम एड्रेस कर पाएंगे। Okay, all right. We have a next caller at this point. Mr. Vishal is joining us from Noida. Yes, Mr. Vishal, good afternoon. Please go ahead and ask your question.
Yeah, hi. Good afternoon to all of you, and thank you for doing this such kind of counseling and giving education to people. My question is that it has been highly recommended not to smoke in this pandemic because it's proven that smokers are more prone to COVID-19 or breathing or lungs issues. So how true is that? Okay. All right, let's put that Definitely, to Dr. Gupta. The smoking basically causes dryness in the airways, and otherwise smoking leads to the higher rate of respiratory tract infection. So that is why smoking is not good. You should avoid smoking, rather you should take steam right now. That will moisturize your respiratory tracts and inactivate the virus also. Okay. Besides this, as we have been discussing, that we have to have the good hand hygiene, cough etiquettes, cough hygiene, physical distance, 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी. Good food is also very important. Have good nutritious diet, and diet you can take certain immune modulators like haldi. What I tell my patient, take some hot golden milk, because the children, they understand golden milk better. Take some dalchini, or take some sont, mulathi, Sure. and giloy, and all these are these are very well. I have been discussing with the Ayurvedic friends also. Do some regular exercise, yoga, pranayam, deep breathing, and stop worrying. That is very, very important. Okay. And I will last come but back not to the you, least, Dr. Raheja. high risk patient we must protect at this hour, like the people, those who are more than 60 years, those who are having comorbid condition, high blood pressure, taking medicine, heart patient, diabetic patients, cancer patients, patients of renal disease, liver disease, respiratory ailments like interstitial lung disease, chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, pregnant women, small children, and very obese patients, those who are cases of renal transplant, patient taking steroids, immunosuppressants. These people take extra precaution, and preferably they should stay at home as much as possible. They should not interact with these outside people. Okay. And also the people, those who are in the house, should ensure the hand hygiene, cough etiquettes with them, and social distance. Sure. Let's in fact put I that will to Dr. actually- Gupta as well. Yes, he's a pulmonologist. Yes, Dr. Gupta. Yeah, I was just going to add to what Dr. Raheja Yes, said. please. The smoking, actually, you see, the coronavirus enters through the lining of the nose and the oropharynx. In the stage 1, it enters through the nose, and after 1 or 2 days, it can actually go down through the oropharynx and enter from that side. Now, this smoking actually, because the coronavirus binds to one particular type of receptor, ACE2 receptor, and smoking is known to cause the injury to the receptors. Secondly, also in the lung lining, there is a type 2 type of cell, alveolar type 2 cell, through which this virus actually is causing all those injuries and causing damage to the alveolar lining, basically through which our oxygen is getting exchanged with the carbon dioxide. Now, smokers normally will have problems not only affecting their airways, but also causes damage to these particular cells. And therefore, the risk of severe disease is higher in smokers. So preferably, people should be abstained or refrain from smoking because it is going to pose them a greater risk of severe disease. Okay. डॉक्टर अशोक, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है इस वक्त बच्चों के लिए भी। बच्चों में जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, कुछ बच्चों को बुखार की शिकायतें आ रही हैं, और कुछ जो बुज़ुर्ग हैं या बड़े लोग हैं वो भी इस वक्त सांस लेने में उनको तकलीफ़ जैसी समस्याएं, वो आज सवाल भी पूछते हैं बार बार ये कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है अगर, तो क्या उनको सीधे कोविड के टेस्ट के लिए जाना चाहिए या फिर उन्हें कैसे कंसल्ट करना चाहिए? उनके लिए आप क्या राय देंगे डॉक्टर अशोक? देखिए, अभी हमको कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमको एग्जिस्टिंग डाटा देखना होता है। तो जितना भी हमारे कोविड या कोरोना के ऊपर स्टडीज हुआ है, द चिल्ड्रेन एज रिपोर्टेड द लिस्ट वल्नरेबल ग्रुप, क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग आल्सो बहुत लेस है। तो इसीलिए वी डोंट नो कि चाइल्ड आर वेरी मच रिस्क प्रोन और नो, बट एज सच वी हैव ए कॉमन एंजाइटी फॉर द किड्स। तो उसी के लिए ही हमने प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। एंड इन
फीवर या कफ ऐसे कुछ होता है तो नॉट नेसेसरीली हम इनको कोविड के टेस्ट कराए, हमको देखना है कि जो एरिया में हॉटस्पॉट में है, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में आए हुए, या जो सिम्टम्स ऐसे कुछ हो रहा है कि हमको फीवर परसिस्टेंट खत्म नहीं हो रहा है और कोई कारण पता नहीं चला, ये सब चीज में हमको कोविड के लिए देखना पड़ेगा। तो बच्चों में कोविड टेस्ट के लिए वी नीड 3 थिंग्स कि हमको सिम्टम्स होने चाहिए सजेस्टिव, हाई रिस्क कैटेगरी में आना चाहिए एंड एक्सपोजर कॉन्टैक्ट बाय हिस्ट्री होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई चाइल्ड एज ग्रुप में थोड़ा सा जस्टिफिकेशन हमको चाहिए होगा टेस्ट करने से पहले कोविड के लिए। बट एट द अदर एंड जो हमारे एक्सट्रीम एज ग्रुप मोर देन 60 और 65, उसमें हमको लिबरल होना पड़ेगा। क्यों? आप जैसे पता है कि जैसे हमारा एज होती है तो हमारा बॉडी का फीवर एज ए सिम्टम मैनिफेस्ट करना कम हो जाता है। ओके। एंड सेकेंड होता है कि उनकी इम्यूनो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, थोड़ा सा इन्फेक्शन से दे विल हैव मोर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। तो इसी के लिए एल्डरली ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में तो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक पीरियड और हमको ऐसे कोई सिम्टम्स फीवर का आ रहे तो उनको थोड़ा लिबरल करना पड़ेगा, जल्दी से टेस्ट करना पड़ेगा। Okay, all right. And on that point, we have a next caller joining us. Mr. Deepak is joining us from Gujarat. Mr. Deepak, good afternoon. Please go ahead and ask your question. थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समय में जो भी हम बाहर से पल्स और सीरियल्स लाते हैं या अच्छे कंपनी के बिस्किट सभी, तो उसको साफ करके यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए? ओके डॉक्टर, जरूरी है कि जो सब्जी या फल हैं उनको आप गर्म पानी में नमक डाल के 5 या 7 मिनट छोड़ दीजिए और उसको साफ पानी से धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना तो उसकी कोई क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा, ना ही किसी टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो भी सामान बाहर से आता है जो प्लास्टिक पैकिंग में है उसको आप साबुन से वॉश कर सकते हैं साफ़ पानी के ज़रिए। जैसे दूध की थैली है, आप थैली को धो के उसमें से दूध निकाल के आप बॉयल कर लीजिए। जैसा मैंने बताया कि 56 डिग्री सेल्सियस के बाद ये वायरस इनएक्टिव हो जाता है। ये बहुत ही फ्रेजाइल वायरस है। फ्रेजाइल मतलब बहुत जल्दी ये इनएक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि आप साबुन के कांटेक्ट में अगर आता है वायरस 20 सेकंड से ज़्यादा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। या सैनिटाइज़र आप अल्कोहल बेस्ड जिसमें कि 60 या 70% से अधिक अल्कोहल है उसके कांटेक्ट में यदि ये वायरस आता है तो भी इनएक्टिवेट हो जाता है ये। इसी प्रकार यदि आप दूध को उबाल देते हैं तो भी इनएक्टिवेट हो जाएगा। और इसके अलावा जो जो सामान आप वॉश कर सकते हैं उसको आप वॉश कर लीजिए। जिसको आप वॉशिंग पॉसिबल नहीं है उसके लिए आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आपको प्रिकॉशन रखनी है। Dr. इस Raheja, समय you said that this is a fragile virus. This could be deactivated once it comes into contact with soap and water and even sanitizer. But what would you say? What makes COVID-19 so contagious? This is very good question because this virus tends to stay in your nose, mucosal lining, throat, pharynx, nasopharynx and lungs. And if you see, the data suggest that almost 80% of the patients are asymptomatic. Out of 100, if you say 55% will have no symptom Or mild yet, symptoms. or mild symptom, or maybe they are yet transmitting the virus, the person they are coming in contact. 25-30% they are having mild symptom but they don't care, it's like a common flu. And 20% will have severe symptom, those who need to go to the hospital, need oxygen, and only 5% now the they become world very over, sick. the world over with lockdowns increasingly being lifted and relaxations being given, we'll gradually and slowly see these lockdowns being opening up. So in that case, if these asymptomatic people are there amongst us, what can we all do to make sure that they do not spread the virus to everyone in society? Very good question. Virus we cannot see. The problem here is we cannot see the virus. And where is the virus? We can't really see. Even it may be on the surface. True. It may be on your hands, fingertips, Exactly. in your Yes. pen, on your cell phone, door handle, tap handle. So you don't know. So that is why extra precautions are to be taken. And standard practice of hand hygiene, cough etiquette, physical distance,
improve your immunity, and I will say simply by covering your mouth जी with a simple cloth. Okay. This is what I am saying. If you just put the cloth here, now even if a person is having the virus and is transmitting, simply by putting a cloth, there is The chances halting of diminish. the transmission of virus. Sure. छोटी Okay. छोटी The problem सावधानियां is- जी A person who becomes symptomatic is transmitting the virus even before the onset of symptom, and almost 80% patients are asymptomatic or no symptoms. So even the person who is transmitting the virus doesn't know, and the person who is coming in contact with that person doesn't know that the person just sitting near to me is transmitting the virus to me, or I am transmitting the virus to him. So that is why this is the time when we should avoid coming close contact with each other. Sure. We must avoid going to Absolutely. the crowded places. Yes. We must avoid social gathering. Yes. If you see the history, Yes, we'll come back and Yes. discuss much more in detail what's clearly the way forward and what's going to be the new normal, because is it a new world that we'll all be looking at? We'll come back and discuss that. But we have our next caller at this point. Mr. Gopal is joining us from Bengaluru. Good afternoon, Mr. Gopal. Please go ahead and ask your question. Yeah, good afternoon. Actually, hello sir. I have a question. Yeah. Recently, our company has started calling to the employees back to the office. Okay. So we are going to the office. Okay. Yeah, really, it's a 30% only. But still, once we are coming back to the home, we are getting little bit tense. We are making distance with the family also. We don't know that if many office staffs are coming to cleaning the floors and these things. So what all the precautions we should take? Sure. Okay. All right, Dr. Gupta, if I can ask you that, he's Yeah. asking that his office has called him back. So what precautions and norms that he must adhere to? I think first we must remove the fear from the people's mind. Though this condition is highly infectious and can spread through the respiratory secretions, which when we talk, we sneeze, we cough, they spread around. But then we as a doctor are also coming without any lockdown for about nearly 2 months now. We are also taking precautions, whatever at our workplace as well as our residential. When you talk about what precautions should take at residential places, I think we should go back to our Honorable Prime Minister saying that we must resume our old ways where we used to remove our sandals outside the house, where we used to wash our hands before we touch anything. So similarly, now the time has come where we should have certain habits. We should be our behavioral change. We should inculcate now. One, we should have our a set of maybe shoes or sandals which we should keep it outside. We should straight away go and change our clothes when we go. We should wash our hands. We should remove our street clothes. Don't shake them. Put them in a basket of maybe soap water, or maybe put in a washing machine directly so that they can be washed. And wash our hands with soap at least for 20 seconds. Okay. Wash our face. Try not to touch our face. Wear mask when we leave outside the home. And if we are having our old people and loved ones at home, then we must protect them by maintaining a safe distance at least. And we must not unnecessarily touch things around. Right? Okay. If we have to cough, we Right. must either wear a mask or Sure. we should cough in our elbow so that we don't actually infect others inadvertently also. Like Dr. Heja said, there is an asymptomatic phase also, and there are people who become symptomatic on an average on the 5th day. The incubation period is up to 14 days. So you can, Okay. after the patient can become symptomatic anytime between 0 to 14 days. But average time is about 5 days. So Okay. before that, you are still infectious. Before that, you can still spread infection. So it is ideally, we should take precautions because you never know, as Dr. Raya said, Right. that who is carrying virus, you don't really know. So therefore, you need to have a hygienic practices even at a workplace, maintaining distance, health, hand hygiene, as well as mask wearing. And at home, you must have this hygiene by hand washing repeatedly, putting our clothes up the street clothes, etc., straight away into the whatever toilet, bathroom, wherever you can keep it separately, and wash them, dip them in the hot water for some time, and then you can wash now.
जी, so that will get rid of the any virus which is Sure. there. जी। तो डॉक्टर अशोक, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। अब आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज़ की बात कही थी, न्यू नॉर्मल की बात कही जा रही है, धीरे धीरे लॉकडाउन ईज़ होगा, चीज़ें खुलेंगी। आप अपनी तरफ से क्या राय देना चाहते हैं जब लोग अब धीरे धीरे क्राउड में जाना शुरू करेंगे, ख़ासकर रेलवे स्टेशंस पर, बस अड्डों पर अगर जा रहे हैं, तो किस तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियां इस वक्त रखने की कोशिश है? ख़ासकर हम जब बात करें, जब प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में से अब हमें फैलने से रोकना है, तो क्या सलाह देंगे आप डॉक्टर अशोक? देखिए, उसके लिए दो तरीके से है कि हमको एज ए सेल्फ पर्सनल प्रोटेक्शन के हिसाब से या जो अपने एटीट्यूड के हिसाब से मॉडिफिकेशंस, सेकंड है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव और एपिडेमियोलॉजिकल इंटरवेंशंस। तो हमें तभी आई थिंक हम बार बार वही चीज को रिपीट कर जाए कि हम कैसे प्रोटेक्शन लेंगे। तो वही हुआ कि हैंड हाइजीन, सेल्फ क्लीनलीनेस, सोशल डिस्टेंसिंग, कफ एटिकेट्स, ये सब तो रहेगा। सेकंड जो है कि हमारा ये होने के लिए हम जितना मूवमेंट आउटसाइड रेस्ट्रिक्शन करेंगे, अभी जो ये लॉकडाउन बोले या कोरोना बोले, इट हैज गिवन ए ग्रेट लेसन टू अस। हम अभी जैसे आपके साथ स्टूडियो नहीं आके भी हो पा रही है, बच्चे स्कूल नहीं जाके भी क्लासेस भी हो रही है। मूवमेंट आप देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग है कि हमारा हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल पूरा भरे रहते हैं पेशेंट के साथ, और तभी भी मोर्टालिटी डेथ रेट ज्यादा था डिजीज से। अभी दोनों चीज कम है, पेशेंट्स भी कम है और अदर रिलेटेड डिजीज रिलेटेड मोर्टालिटी भी कम। तो ये हमको एक नया लाइफ स्टोरी बता रहा है कि हम अपने को इस तरीके से करें कि अननेसेसरी कम्यूटेशंस को अवॉइड करें, सो दैट कि आज इटसेल्फ हमारा कॉन्टैक्ट मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करेगा। वो हम अपने से कर सकते हैं। ओके, दैट इज ये पर्सनल लेवल। सेकंड कम्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जो हमारे एपिडेमियोलॉजिकल इंटरवेंशंस, जैसे हम बता रहे थे, काफी बात आ रही थी कि हार्ड इम्यूनिटी के लिए। हार्ड इम्यूनिटी मींस कि हमने एक्सपोज हुए और प्रोटेक्शन हुए। तो इसमें क्या होता है कि यंग एज पीपुल्स जैसे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, दे गेट क्योर्ड, तो उनके लेवल में एक एंटीबॉडी प्रोटेक्शन होता है, दे बिकम इम्यून। सो जैसे इन्फेक्शन हुआ, एसिम्प्टोमेटिक रहे और उनके मूवमेंट होने से डिजीज पर्सन को वायरस चांस ऑफ ट्रांसमिशन कम हो रही, ये हमको एक तरीके से प्रमोट करना है। सेकेंड रहा कि डिटेक्शन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक और ईयरली सिम्प्टोमेटिक फेजेस, जिसके लिए काफी सारे टेक्नोलॉजीज आ रखा है, जो हमारे कंट्री में भी धीरे धीरे आने लगा है कि हमने ट्रैकिंग डिवाइसेस लगानी है, थर्मल कैमरास जो होते हैं कि टू डिटेक्ट योर टेम्परेचर, कफ सिम्टम्स इन ए मास क्राउडिंग। सपोज आप रेलवे स्टेशन में है, इंडिविजुअल को स्क्रीन नहीं कर पा रहे, तो कैमरा कैन डिटेक्ट। ऐसे भी कैमरा अभी आ रहा है कि 1 मिनट में 600 पीपुल्स फ्रॉम अराउंड 60-30 मीटर्स डिस्टेंस से स्क्रीन करके दे कैन प्रोवाइड ए प्रेडिक्शन मॉडल्स कि इसका लाइकली सिम्टम्स है, तो आप इसको थोड़ा हाई रिस्क ग्रुप में लेके आइसोलेट करिए। देन तो वी शुड यूज द टेक्नोलॉजी आल्सो। बोथ एस्पेक्ट से हमको करना पड़ेगा। Absolutely, we're in fact also getting questions on our Facebook page, and I would like to request Dr. Raheja and Dr. Gupta to answer those. Dr. Raheja, if I can come to you first, this person is asking how long does the coronavirus stay in the air? Part B of that question is it necessary to wear a mask during even driving a car? First thing, in the car you should not have more than 2 or 3 individual, and if you are going alone it's fine, but if you are going in a group, I think it is very important to wear mask or cover your mouth. And this virus is going to stay with us in the coming years. How long does it stay in the air? He's asking specifically. Yes, that is another question. Normally we see that this virus is transmitted through the air in a aerosol fashion. Correct. And if you are coming to a contact to a person within the range of 1 meter, it can be transmitted, and that too the duration of exposure. Now the point is, it stays differently in different environments. Okay. In the air this goes as a aerosol, and as long as it is there in, I mean, it depends on the air velocity also. Okay. Like if you are sitting in a central AC or the AC environment and totally shut down, then the virus will keep circulating. So that is why we now encouraging
अपने घर की खिड़कियां खुली रखें और प्रेफरेबली सेंट्रल एसी को कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर सेंट्रल एसी इस्तेमाल भी करना है तो उसकी टाइम से सर्विस होनी चाहिए और उसमें हैपा फिल्टर्स होने चाहिए, क्योंकि हमने हॉस्पिटल में ये कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी सेंट्रल एसी वार्ड्स हैं हैपा फिल्टर्स 95% तक 2.5 माइक्रोन से कम साइज का जो भी पार्टिकल है उसको रिमूव कर देते हैं. Okay. So these few precautions we have to take, and at the same time we have to look for the personal life, our family life, social life and professional life. So we have to work at every corner. Like if you are in the office, you should maintain those social distance, cough etiquette, avoid hugging, शेकिंग हैंड, किसिंग, गले मिलना जरा अवॉइड करें. पर्टिकुलरली घर में यदि आप आते हैं तो बूढ़े व्यक्तियों से जैसे हमारे गले मिल लेते हैं उसको अवॉइड करें, वो ज़्यादा वल्नरेबल है. जैसे पहले भारत में पारंपरिक था कि दूर से नमस्कार करें, उसी में आप सुरक्षित हैं और आपका सामने वाला भी सुरक्षित है. You mentioned about senior और citizens. धर्म में हमारे जैन धर्म में पहले मुंह पे कपड़ा बांधते थे, तो उसको लगा के रखें. जी, तो ये इस वक्त पर बहुत ज़रूरी है कि जब अब लॉकडाउन में थोड़ी ढील जब दी जा रही है तो जो बेसिक्स आपको बताए गए थे कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क लगा कर रखना है, उन सब नियमों का पालन किया जाए. डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर नीरज गुप्ता, आपसे मेरा सवाल है. इस वक्त पर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं, जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है या केसेस बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट हमारी अच्छी है और मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन बार बार नकारात्मक विचार जब दिमाग में आते हैं, एज अ डॉक्टर आपकी राय क्या है? मानसिक सेहत पर इस वक्त ध्यान देना, डॉक्टर नीरज आपसे जानना चाहेंगे कितना जरूरी है, लोग इस पर ज्यादा से ज्यादा क्यों ध्यान दें? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं. एक तो ये है कि हम इस वक्त लॉकडाउन में अपने घर में अकेले रह जाते हैं. बहुत लोगों से जो मित्र है, अपने घर के बंधु हैं, उन लोगों से हमारी जो है संपर्क हटने लगते हैं, और जो लोग हमसे मिलते थे, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं, जिनसे मिल करके आप अपने बातें कह पाते थे, वो आजकल नहीं हो पा रहा है. तो इसके वजह से आप लोगों में अंदर एक डिप्रेशन की भावना बनने लगती है. दूसरा ये आता है कि जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस पीड़ित हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा भय पैदा हो जाता है, कहीं वो उसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी. जबकि मृत्यु की दर जो है अगर कोरोना पीड़ित व्यक्ति में देखी जाए तो बहुत मिनिमम है, वो 2% से भी कम है. 95% तो ठीक होते ही है, लेकिन उसके बावजूद जो है व्यक्ति टेंस हो जाते हैं. हमारे अभी एक व्यक्ति ने सुसाइड की कोशिश की, दूसरे ने उसको कूद के अपनी जान दी. कल भी किसी एक जम्मू कश्मीर नौजवान ने अपनी डर के मारे, भय के मारे जान दी. तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. ये ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती. 95% पेशेंट ठीक होते हैं, 80% तो बल्कि एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं. और जहाँ तक इसका संबंध है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, इमोशनल डिस्टेंसिंग की बात नहीं की है, फिजिकल डिस्टेंस की बात की है. लोगों से मिलने जुलना, टेलीफोन पे बात करना, व्हाट्सएप, स्काइप पे बात करना, उसकी हमने बात की है. तो आपको धैर्य रखना है, मन का अपना बढ़ा के रखना है. हाँ, ये जरूर है जब आप अकेले घर में होते हैं, आपके पास काम कम होता है, तो आपके पास में गलत धारणा उत्पन्न होती है. इसलिए अपने आप को काम में किसी प्रकार की एक्टिविटी करिए. आजकल तो आइडियल टाइम माना जाएगा कि अपनी फैमिली, अपने संबंधियों के साथ में आपको बहुत अच्छा समय मिला है, क्वालिटी टाइम, इसको आप व्यतीत कीजिए. जो नई नई स्किल्स है वो सीखने की कोशिश कीजिए. तो किताबें आप सब पढ़िए और अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम में माइंड में रखिए. थोड़ा एक्सरसाइज करना आवश्यक है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ये बहुत आवश्यक है. इस वक्त लोगों का इस पर ध्यान देना. हम लोग जो है वो इस चीज पे ध्यान न देते हुए इसी कारण आज हम पीड़ित होते जा रहे हैं. वैसे भी मेंटल हेल्थ स्ट्रेस जो है वर्किंग लाइफ में आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग सब टाइम. राइट डॉक्टर गुप्ता. ओके, श्योर. We have more questions on our Facebook page. I would request Dr. Chaudhary to please answer that. One of the persons is asking, we are senior citizens with the comorbidities. Now our daughter has to go to office from the 18th of this month, and what precautions should be taken when she comes back from work? Also, what precautions should be taken when maid comes home for work? Yeah. So now we see these are two parts. First is when someone is going to the office or who is moving outside, how you have to prepare. So first, as a doctor also I do. So first of all, think that I should, when I enter to the room, we straight go to your washroom, keep your have a good quality shower, then put the dresses here, these things. That is one. Two,
try to avoid the gadgets when you're going to the office as minimum as required. Watch is not needed now, the mobile is working for this, belt, wallet and all things, these are try to avoid, these are the source we have to get contaminants. And then third, when you are coming from the office, then after getting a shower and everything, you maintain the same thing in the home. Try, particularly when you have an elderly with you in the parents or elderly parents or some chronic disease persons, Right. so social distancing, try to maintain in the home. Sure. And Dr. as you see, Dr. I am Ashok, also yeah. एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप ही से उनका जवाब लेना चाहेंगे। विमल हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। विमल, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है मैम कि मेरे हस्बैंड की सिस्टर है, एपिलेप्सी की पेशेंट है और वो मेरे ब्रदर इन लॉ के घर में रह रही है, उसको मेंटल रिटार्डेशन भी है और वो टर्न बाय टर्न हम उसको रखते हैं, कभी ब्रदर इन लॉ कभी हम। तो मेरे ब्रदर इन लॉ 3-4 दिन पहले उनके यहाँ एक पेशेंट आया जो कि बाद में पॉजिटिव पाया गया। तो वो अब मुझसे ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा रिस्क है और अगर मान लो मेरी सिस्टर इन लॉ को कोरोना हो जाता है तो उसे संभालना मुश्किल है क्योंकि वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती और मेंटली रिटार्डेड भी है, तो आप उसे अपने घर ले जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि जब वो पेशेंट पॉजिटिव उनके पास आया उसके कितने दिनों बाद हमें उसका टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि मेरे ब्रदर ने ये कह रहे हैं कि हम उसको टेस्ट करवा के आपके घर भेजेंगे। या पहले तो हाँ, आई विल कॉम्प्लीमेंट कि टेस्ट करना जरूरी होता है। जब मैंने आपको बताया था कि लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कि वो बंदा ने मास्क पहना है नहीं पहना है और आपने मास्क पहने थे नहीं पहने। दो है कि आपने कितना दूर से उसके साथ कांटेक्ट आए। सपोज 2 मीटर 6 फीट से कम डिस्टेंस में आप कांटेक्ट आए थे नहीं आए। थर्ड, आपने कांटेक्ट जो है 15 मिनट से ज्यादा हुआ है नहीं। तो ये 3 चीज देखनी है, उसके बाद हम टेस्ट करना है। दैट इज 1 2, जैसे वो बंदे की सिम्टम्स नहीं था और आप उसके साथ कांटेक्ट में आए तो चांस ऑफ इन्फेक्शन इज लेस। थर्ड, कोई भी इन्फेक्शन जब भी होता है और कोई पर्सन कांटेक्ट में हम आते हैं तो वो वायरस की इफेक्ट आपके पास जो भी आता है, मे बी वी बिकम एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, बट ये अपने आप ही 7 to 14 डेज में चले जाते। एंड इसी के लिए शायद अभी हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आए कि जो माइल्ड सिम्टम्स है उनको दोबारा टेस्ट मत करिए, सिम्टम फ्री। कि एक बंदे को डिजीज हुआ था, 10 डेज हो गए बीमारी को, या 3 दिन से फीवर नहीं आ रहे और माइल्ड कैटेगरी में आ रहा था या मॉडरेट कैटेगरी में आ रही है, हॉस्पिटल जाना या एडमिशन जरूरी नहीं पड़ा था, तो कोई रिस्क नहीं है, ओनली आइसोलेशन होना चाहिए। तो इनके कंडीशन में मैं वही बताऊंगा कि ये जो 3 पैरामीटर बोला आप उसको डिसाइड करके देखिए। सपोज लग रहा है तो टेस्ट कराना जरूरी है, नहीं लग रहा है और या उसके कांटेक्ट जो हुआ था 7 से 10 दिन हो गया है, तो ऐसे कुछ करना जरूरी नहीं है, आप आराम से भेज सकते हैं। बट मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसे कोई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन वहां रहने से भी होगा। आप जो नॉर्मल हमने मेथड्स बताया था उसी के अंदर रहते हैं कि अपने मूवमेंट आउट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट, मतलब घर के अंदर तो रह सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड है बट घर के अंदर रह सकते हैं और इंसिस्ट करें कि वो थोड़ा सा मास्क पहन सकते, वो कुछ कर सकते हैं, तो जरूरी भी नहीं होगा सिर्फ देखें। बिल्कुल सारी सावधानियां बरत कर ही उनका टेस्ट होकर वो घर पर आए। डॉक्टर अशोक, यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी हमारे दोनों एक्सपर्ट से हम अपनी राय जान लेते हैं। डॉक्टर नीरज, आपके क्या आप आखिर में कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो बात है जो कि अभी डॉक्टर अशोक ने बोला कि वैसे हम लोग नॉर्मली 5 से 14 दिन के बीच में टेस्ट करवाते हैं अगर सस्पेशन होता है। दूसरा मेरा एक मैसेज ये है कि हमको 3 वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें आस बनी रहेगी। आस का पहला आ है अनुशासन, दूसरा आ है आत्मसंयम और तीसरा सा, इसका मतलब स्वच्छता। अगर हम ये अनुशासन, आत्मसंयम और स्वच्छता बना के रखेंगे तो मुझे कोई शक नहीं है कि हमको इस बीमारी पे जीत पाने में बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रहेजा। सबसे ज़रूरी बात है, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर है 1075 या 01123978046 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या आरोग्य सेतु ऐप से आप कांटेक्ट में रहिए। आरोग्य सेतु ऐप मेरे विचार में सभी को अपने सेल फोन में डाउनलोड करना चाहिए। अभी इसमें 9.8 करोड़ यूज़र हो गए हैं, आई थिंक टुडे इट मस्ट बी 10 करोड़ इवन। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है mohfw.gov.in, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल है ncov2019@gmail.com, ncov2019@gov.in। और
अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखें, अपने कम्युनिटी को, अपने मोहल्ले को सुरक्षित रखें। हमें ये समझना है कि यदि हम खुद को सुरक्षित रखते हैं और अपने परिवार को, तो हम अपनी ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, हम नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी को बिकॉज अपना अगर फर्ज हर एक निभाना है। व्यक्ति इस चीज को समझ ले तो हम इस ट्रांसमिशन को as a social Yes, responsibility, absolutely. It is our responsibility now to stay and home, stay we can safe. handle it together, and Absolutely. together we And win. we That must should be handle the it. final message. Sure. We are running out of time, Dr. Aheja, but very important messages that you're leaving us with. Though it's our bit, and it's time that we start doing our bit. On that note, thanks very much, Dr. Aheja, Dr. Gupta, and Dr. Chaudhary, all of you for joining us and sharing your perspective and insight on very important topics related to COVID-19. With that, it's a wrap on the COVID-19 Doctor Speak for the moment. Thanks for being with us.